हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड। माय नेम इज़ वर्षा धीमान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नबार्ड ग्रेड ए 2025 के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ARD दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, and I'll also tell you why this particular subject is very important to cover for your grading examination. So you have to watch this session till the last minute, right? So let's start our today's very important discussion. So we all know that कि recently NABARD का short notice out हुआ है, and on the basis of the short notice we are expecting कि 8th of November 2025 को we will have the detailed notification for NABARD grading examination. So this is a very crucial time for all those aspirants who are targeting for this examination. और इस टाइम पे आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं, आपका जो टाइम है वो बहुत ही कैलकुलेटिव मैनर में यूटिलाइज होना चाहिए ताकि सब सब्जेक्ट्स और सब प्रिपरेशंस आपके बहुत बेटर मैनर जाए। ठीक है, सो by taking care of all these things I decided to bring this video for you. So aspirants, आप सबसे पहले तो ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए so that you will get the PDFs of YouTube classes, and there are so many important courses available for you, right? And this is a complete batch. You can be the part of this batch and start your preparations with us. All right. So let's start. Let's talk about the ARD portion. तो वी ऑल नो दैट, ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? ये जो नबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन होता है, इट इज कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू। बिफोर द इंटरव्यू देयर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपके कुछ एमसीक्यूज होते हैं टू चेक योर साइकोमेट्री, राइट? अब यहाँ पे जो फेज 1 एग्जामिनेशन होता है दैट इज कॉमन फॉर जर्नलिस्ट ऑफिसर्स एंड द स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, ठीक है? और ये जो आपका फेज 1 एग्जामिनेशन है दैट इज हैविंग 2 सेशन। वन इज अ क्वालिफाइंग सेक्शन, ये जो आपके फर्स्ट 5 टॉपिक्स यहाँ पे जो मेंशन है, सेक्शन जो मेंशन है, दे आर फ्रॉम योर section, and the 6th, 7th and 8th, these 3 sections are from your merit section. Okay, ARD, why it is important? Because it is a very important component of your merit section. It is having 40 questions, or we can say 40 marks. Out of 200 there will be 40 questions and 40 marks जो कि आपके ARD that is agriculture and rural development से होने हैं. And one plus point is that for the general stream aspirant, जो general category में general stream में apply करने वाले हैं, कि उन्हीं को ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ARD और ESI, इन 2 सब्जेक्ट्स को फेज 2 में भी फेस करना, ठीक है? तो आपकी प्रिपरेशन में यू हैव टू एड ऑन सर्टेन थिंग्स कि आपका फेज 1 एंड फेज 2 एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में हो जाए, ठीक है? इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस का ब्रेक डाउन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस about everything related to the ARD portion in this session. ठीक है, तो ARD के 40 questions will be there, 40 marks will be of ARD in your phase 1 examination. And similarly when we talk about the phase 2 examination, जिसमें आपका paper 1 will be of descriptive English and the paper 2 will be of ARD and ESI portion, जिसमें आपके descriptive question भी रहेंगे and you will have to face the objective questions as well, right? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे एज इट वाज इन द फेज 1 एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, there will be some questions of 1 marks and there will be some questions of 2 marks, right? और यहाँ पे जो आपका लेवल रहेगा एग्जाम का that will be quite hard, ठीक है? Another important thing is कि इसमें जो आपका descriptive paper रहेगा, there will be 6 questions you have to face. उसमें से आपको 4 questions attempt करने हैं, 2 questions of 15 marks and 2 questions of 10 marks. अब कौन से questions को आप attempt करने वाले हो, कौन से को नहीं करने वाले हो, वो आप तभी डिसाइड कर सकते हो जब आपने अच्छे से अपना सिलेबस कवर किया हो, साथ में आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको हर क्वेश्चन को देख के ये लगेगा कि हाँ आई कैन फ्रेम अ गुड आंसर फॉर दैट, लेकिन 600 वर्ड्स की लिमिट, 400 वर्ड्स की लिमिट और साथ में बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम करना, इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल। आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो, आपने सिलेबस को अच्छे से समझा हो, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस पर्टिकुलर सेशन, ताकि आपकी सिलेबस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ ARD, that is agriculture and rural development portion, right? So you can see on the screen
कि जो हमारा सिलेबस है इट इज नॉट इन अ सिंगल टॉपिक, आपके सिलेबस को मल्टीपल टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। व्हेन यू सी द ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडिकेटिव सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपका जो सिलेबस है इट इज डिवाइडेड इन सच ए मैनर, ठीक है। तो अंडर द एग्रीकल्चर और द एग्रोनॉमी पोर्शन, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी पोर्शन में आपके जो टॉपिक्स मेंशन है दे आर लाइक द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड द डिफरेंट ब्रांचेस और द एलीट सेक्टर्स, ठीक है, जिनको आपको साथ में एग्रीकल्चर के पढ़ना होता है, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू मूव ऑन द एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। नाउ यू गाइस माइट हैव क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में कभी भी नहीं आते हैं, व्हाई वी आर कवरिंग दिस। लिसन, दिस इज टू मेक योर फाउंडेशन, ठीक है। सिलेबस में ये टॉपिक इसलिए मेंशन किए गए हैं ताकि आप सिलेबस के साथ फैमिलियर हो जाओ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है उसको आप तभी समझ सकते हो अगर आपने बेसिक क्लियर किया हो, अगर आपने एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को पढ़ा हो, तभी जाके आप ले फार्मिंग और एलए क्रॉपिंग में डिफरेंस बता पाओगे, ठीक है, कि ले फार्मिंग क्या है और एलए क्रॉपिंग क्या है। अगर आपने बेसिक से नहीं करा होगा तो ये डिफरेंस आपके लिए जानना मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो एग्रोनॉमी में यू हैव टू कवर द डेफिनेशन, मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। आफ्टर दैट विल मूव ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फीड क्रॉप्स। फील्ड क्रॉप्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है उनके इकोनॉमी के बेसिस पे, लाइफ साइकिल के बेसिस पे एंड कि उनका ग्रोइंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वो आपके शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, लो लैंड एरियाज में हो रहे हैं, वेटलैंड एरियाज में हो रहे हैं, ऑन द डिफरेंट बेसिस और साथ में दे आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट। इसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन से डायरेक्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन का एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या है, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपसे एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि दीज आर द थ्री एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड ये आपके कौन से एरिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगर हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। Then we have the topic of types of cropping system and their definitions. Problem faced if the land is dry, ठीक है, आपके जो ड्राई लैंड एरियाज हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। सीड प्रोडक्शन एंड सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेजेस, मेट्रोलॉजी, वेदर पैरामीटर्स, क्रॉप वेदर एडवाइजरी, प्रिसीजन फार्मिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो प्रिसीजन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये आपके लेटेस्ट टॉपिक है, तो देखो आपके सिलेबस के अंदर लेटेस्ट टॉपिक को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई स्कीम आपकी न्यूज में है, नेशनल मिशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, तो आप उसको यहाँ कनेक्ट करके भी कवर कर सकते हो, ऑल्दो आप करंट अफेयर में तो उसको कवर करोगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। सो अंडर दिस वी हैव टू कवर द मेजर सॉइल टाइप्स, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमें ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। We have to cover all these short topics under this heading. Then we have the water resource, ठीक है। water resource में हमको cover करना है irrigation management, the different types of irrigation। देखो क्वेश्चन irrigation से आ रहे हैं कि जो cultural command area है under the micro irrigation projects, under the macro irrigation projects वो कितना है, ठीक है। तो रेंजेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू हैव टू कवर दैट कि कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है और कल्चरल कमांड एरिया डिफरेंट जो आपके इरिगेशन है उनके अंदर कितना आता है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, sources of irrigation, crop water requirements, command area development, water conservation techniques, micro irrigation, irrigation pumps, major, medium and minor irrigation। रिसेंटली हमने 2024 के PYQs करे, ठीक है, फेज वन, वहां पे भी आपका क्वेश्चन था इरिगेशन टाइप से रिलेटेड, ठीक है, आपके ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जाते हैं कवर कर, ठीक है। एग्री एंड फार्म इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ वेरी topic. So under this we have to talk about the farm power sources on the farmland, जैसे कि animal power है, human power है, electrical power, mechanical, wind. So wind, biomass and biofuels and solar we all cover in the renewable sources of the power energy, ठीक है। तो ये cover करना है, biofuels है, water harvesting structures है, farm ponds, agro processing, modified and controlled storage,
storage of perishable foods, beans, godowns and grain silos. ठीक है, तो अभी सिलो से क्वेश्चन था एग्जाम में, एक इंजीनियरिंग से कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन था. तो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम. ट्रैक्टर से पावर टेक ऑफ वाला क्वेश्चन था. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू कवर द हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन. ठीक है, ऑल्दो अगर आप देखो, अगर आप एग्री बैकग्राउंड से हैं तो आप फैमिलियर होंगे कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, हॉर्टिकल्चर में, तो हम 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वो सब नहीं पढ़ना है. यू हैव टू गो फॉर सम सेलेक्टिव पोर्शन. वो सेलेक्टिव पोर्शन ही आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं. ठीक है, ताकि आपको ज्यादा टाइम लगा के पूरा 4 ईयर का कोर्स ना पढ़े. ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स ब्रांचेस, production technology and agronomic practices with respect to various horticulture and plantation crops, value and supply chain management of horticulture and plantation crops, post harvest management of the same. ठीक है, तो you have to cover this portion. Other than that, you have to cover the animal husbandry portion as जिसमें हम फार्म एनिमल्स के बारे में बात करते हैं और हमारे इकोनॉमी में इनका क्या रोल, वो हम डिस्कस करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया, commonly used terminologies pertaining to the different species of livestock, utility classification of breeds of cattle, introduction to common fodder and feeds, their utility and classification. ठीक है, उसके बाद दिस इज फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन, जिसमें हम लोग काउ के, बफेलोज के, गोट्स के, शिप्स के ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे. उनके फॉडर, फीड्स, यूटिलिटी क्लासिफिकेशन वी विल डिस्कस. जो भी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है उनका important features will be covered. After that, we have to focus on the poultry sector as well. कॉमन टर्म्स क्या है पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ जो एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद देयर मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का डिफरेंस हम आगे पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ लेंगे फार्मिंग सिस्टम के टाइम पे, तो यहाँ पे हम उसको रिलेट कर पाएंगे इजीली, राइट. उसके अलावा द कंसेप्ट ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन. अब यहाँ पे देखो इस पोर्शन में आपका जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है, कहाँ पे मीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबली मीट प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में. ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको जो स्टैटिक थिंग है उसको लेटेस्ट पोर्शन के साथ अटैच कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट फिशरीज. अभी हमारा मेरीन फिशरी सेंसस हुआ है, ऐसे ही हमारे पास अदर डेटाज भी हैं, हमारी इंपॉर्टेंट फिशेज जो एक्सपोर्ट होती हैं, उसको आप यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो. स्टैटिक पोर्शन के साथ आपको करंट अफेयर पोर्शन जो पढ़ रहे हो पता होना चाहिए, कैसे कनेक्ट करके सब चीजों को आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं या फिर बेटर तरीके से रिवीजन में आपको हेल्प मिल सके, ऐसे आपको सब चीजों को मैनेज करके रखना है. तो फिशरी रिसोर्सेज हो गया, एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनेजमेंट हो गया, मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर, इनलैंड एंड मेरीन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज इन इंडिया, कॉमन टर्म्स pertaining टू फिश प्रोडक्शन. ठीक है, एंड देन इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर, फॉरेस्ट्री पोर्शन में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तो मस्ट है ही. ठीक है, जो लेटेस्ट आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है वो तो आपको मस्ट करना है. उसके अलावा द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, मैंसुरेशन, इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सिल्वीकल्चर. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड JFM, दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट. Legislations and the policies regarding forest in India. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट वन है 2023 का, और अगर एग्जाम से पहले 2025 का रिपोर्ट भी आ जाएगा तो आई विल कवर दैट, डोंट. उसके अलावा ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड अगर कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट एंड कॉन्फ्रेंसेज होती, मीटिंग्स होती हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए होते हैं, जैसे अभी हमारा एशियाटिक लायन का सेंसस भी हुआ था, वी हैव टू कवर दैट एशियाटिक लायन सेंसस. स्नो लेपर्ड्स का डेटा आया, वो भी हमें करना है. एक्वेटिक जो इंडो गंगेटिक डॉल्फिन्स को लेकर फर्स्ट टाइम हमने कुछ सर्वे किया, उनका डेटा कलेक्ट किया, वो भी हमको कवर करना है. सो वी हैव टू टेक केयर कि हमें कैसे करंट अफेयर एज वेल एज आपके स्टैटिक पोर्शन को कंबाइन करके अच्छे से कवर करना. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में मेजरली जो आपसे क्वेश्चन आता है, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 1 एज वेल एज फेज 2,
क्योंकि मेथड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस आपके जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, दे आर क्वाइट आस्क्ड इन योर फेज टू एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन का रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इवैल्यूएशन मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, कृषि विज्ञान केंद्र का क्या रोल है इन द डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ecology and how it is relevant to man's sustainable management and the conservation of natural resources, climate change and its causes like greenhouse gases hai, countries emitting high amount of greenhouse gases or climate analysis, ठीक है, adaptation and mitigation में क्या difference है, climate change उसका impact क्या हो रहा है rural livelihood पे और agriculture पे, कार्बन क्रेडिट है, आईपीसीसी, यूएनएफसीसी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिलेटेड हमारा 2024 में क्वेश्चन आया था कि इंडिया ने कब तक का टारगेट किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में कि हम जीरो एमिशन पे आ जाएंगे, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, हम 2070 तक के टारगेट कर 2047 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि हम विकसित भारत में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, उसके लिए हम बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। फंडिंग मैकेनिज्म्स फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स एंड इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि ऐसे पीसीसी है, एनएपीसीसी है। अब ये जो एनएपीसीसी है ना, तो जो क्लाइमेट रिलेटेड फंड है, नेशनल जो आपका क्लाइमेट रिलेटेड फंड है, दैट इज मैनेज्ड बाय नबार्ड। तो आपके एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है ये नबार्ड के, ठीक है। तो कहाँ पे किसको रिलेट करके पढ़ना है, इट वुड बी वेरी पॉसिबल फॉर यू टू कवर इफ यू हैव अ मेंटोर विद यू, जिससे आप ये सब चीजें पूछ पा रहे हो टाइम टाइम, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है एग्रीकल्चर एंड लीड सेक्टर का इंडिया में, लाइक ट्रेंड्स क्या है रिसेंट टाइम्स में, मेजर चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, viability of agriculture, factors of production of agriculture, agriculture finance and marketing, globalization and its impact on Indian agriculture and the issue of food security, concept and the types of farm management. Okay, so this is all about your agriculture portion. अब agriculture portion के अलावा in your exam there is a good weightage for your rural development portion as well. ठीक है, तो rural development portion से जो topics included हैं in your syllabus, they are like the concept of rural area, the structure of the Indian rural economy, the rural sector of India and its importance and role, social, demographic, and economic characteristics of the rural economy of India, causes of rural backwardness, rural population in India, occupational structure, agricultural laborers, handicrafts, tribes, forest dwellers, farmers, artisans, traders, and others in the rural parts of India, changing trends in the rural workforce and rural population in India, problems and conditions of rural laborers, issues and the challenges in handlooms. After that, we have Panchayat Raj institutions. Function इसका working इसकी different committees जो जिनके basic recommendations पे पंचायत राज institutions का formations हुआ वो हमको cover करने हैं. National Rural Livelihood Mission, मनरेगा, drinking water programs in rural India जो आपका जल जीवन मिशन है, आजीविका, स्वच्छ भारत, हाउसिंग इन रूरल एरियाज पूरा एंड अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गए हमारे टॉपिक्स, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस का ब्रेक। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ एज ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट ट्रेंड, okay? When we talk about our phase 1 examination, तो phase 1 examination में the major questions will be from your agriculture portion. We can say that 30 क्वेश्चन अगर आपके एग्रीकल्चर से हैं तो 10 क्वेश्चन आपके रूरल डेवलपमेंट से हैं, और ये जो 30 क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन डायरेक्टली, जो आप इस पूरे सिलेबस को कवर करके इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और 10 क्वेश्चंस में क्या होगा, ऑल्दो डेफिनेशन और द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन, बट आपसे कुछ करंट रिलेटेड डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन में आपको स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर पोर्शन को प्रॉपरली अलाइन करते हुए पढ़ना, राइट। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग, अगर हम रूरल डेवलपमेंट पोर्शन से बात करें तो यहाँ से अगर करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं तो जो भी हमारे रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं, जल जीवन मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो भी लेटेस्ट में उनमें अपडेट्स हुए हैं, कुछ एड ऑन हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक उन्होंने अचीवमेंट्स किया है, वो इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज आपसे स्टैटिक क्वेश्चन के भी वी कैन एक्सपेक्ट कि 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं,
है, जिसमें आपके PRI रिलेटेड, एरिया रिलेटेड। आपके प्रिपरेशन में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि अनटच रह जाता है। अगर कोई फेज 1 में अनटच रह जाता है तो फेज 2 में टच हो जाता है, इसलिए यू हैव टू कवर दिस सिलेबस प्रॉपरली। अब ये बैच अवेलेबल है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑलमोड, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस बैच। लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव आप डाउट पूछ सकते हो, कैन क्लियर ऑल क्वेरीज। ठीक है, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो विद द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑलमोड, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर preparations with us. Thank you so much and all the very best.